اسرائیل نے ایک ہی حملے میں 100 فلسطینی شہید کر دیے۔ غزہ کے اسکول پر ہزاروں پاؤنڈ وزنی بم دے مارا، پناہ گزین نماز پڑھ رہے تھے۔ 250 سے زائد زخمی۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کے 30 مقامات پر حملے، عورتوں بچوں سمیت جنگ میں شہداء کی تعداد 39,699 سے تجاوز کر گئی۔ خان یونس سے ہزاروں فلسطینی نقل مکانی پر مجبور۔ اسرائیل کا لبنان کے علاقے سیدا میں حماس کے عہدیدار کو شہید کرنے کا دعویٰ، علاقے میں کشیدگی بڑھ گئی۔ قطر میں مصر اور امریکی رہنماؤں نے اسرائیل اور حماس کو جنگ بندی کے لیے مذاکرات پھر شروع کرنے کی دعوت دے دی۔ امریکہ کا سعودی عرب پر ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی ہٹانے کا فیصلہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق بائیڈن انتظامیہ نے کانگریس کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ سعودی عرب کو اسلحہ کی فروخت اگلے ہفتے شروع ہونے کا امکان۔ امریکی حکام نے اسرائیل کو اسلحہ خریدنے کے لیے $3.5 ارب کے اجراء کا بھی فیصلہ کر لیا۔ امریکی کانگریس پہلے ہی رقم کے اجراء کی منظوری دے چکی ہے۔ بنگلہ دیش کے چیف جسٹس نے استعفیٰ دے دیا۔ چیف جسٹس عبید الحسن نے عبوری حکومت کے سربراہ سے ملاقات سے قبل ہی عہدہ چھوڑ دیا۔ طلبہ تنظیموں نے احتجاج کے دوران ان سے استعفے کا مطالبہ کیا تھا۔ بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمشنر سید احمد معروف کی چیف ایڈوائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات۔ سید احمد معروف کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر یونس سے ملنا اعزاز ہے۔ بنگلہ دیشی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس نے اشتہارات میں اپنی تصویر استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ پاکستان کا درخشندہ ستارہ جیت کا استعارہ ارشد ندیم پاکستان کے لیے روانہ۔ قومی ہیرو آج رات براستہ استنبول لاہور پہنچیں گے۔ وزیر اعظم ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے پہنچیں گے۔ شہباز شریف ارشد ندیم کے گولڈ میڈل جیتنے پر خوش۔ 12 اگست کو ورلڈ یوتھ ڈے بھرپور انداز میں منانے کا فیصلہ۔ حکومتی ذرائع کے مطابق نیشنل یوتھ پالیسی کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے انچارج رانا مشہود کو ذمہ داری سونپ دی گئی۔ ارشد ندیم بھی تقریب میں شرکت کریں گے۔ میاں چنو میں ارشد ندیم کی جیت کے بعد محلے دار خوش۔ علاقے میں عید کا سما۔ ارشد ندیم کو ویلکم کرنے کے لیے تیاریاں جاری۔ ارشد ندیم کے علاقے کی سڑکوں کی پہلی بار صفائی کی جا رہی ہے۔ ارشد ندیم کی واپسی پر شاندار استقبال کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں ارشد ندیم نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ارشد ندیم یوتھ فیسٹیول کی دریافت ہے۔ شہباز شریف نے یوتھ فیسٹیول کرائے، ایک کھلاڑی نے آ کر بند کر دیے۔ فتنہ اور فسادی گروپ ہر وقت سازشوں میں لگا رہتا ہے۔ قوم متحد ہے، ایک فسادی گروپ کو اس کی تکلیف ہے۔ ارشد ندیم کو پاکستانی سرکار کی طرف سے کیا کیا ملے گا؟ وفاقی حکومت کی جانب سے ارشد ندیم کو اعلیٰ ترین سول اعزاز کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت کی طرف سے 10 کروڑ، سندھ حکومت کی جانب سے 5 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ گورنر پنجاب اور گورنر سندھ کا 20 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ میئر سکھر کہتے ہیں ارشد ندیم کو سونے کا تاج پہنائیں گے۔ میاں چنو میں ارشد کے نام پر سپورٹ سٹی بنے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ قوم کا سر فخر سے بلند کرنے والے ارشد ندیم کے نام سے منسوب ایتھلیٹکس اکیڈمی بنائیں گے۔ ارشد ندیم کی کامیابی پر امریکہ اور جرمنی کی پاکستان کو مبارکباد۔ کراچی کے امریکی قونصلیٹ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں لکھا، ارشد ندیم کی کامیابی پوری پاکستانی قوم کے لیے قابل فخر ہے۔ جرمن قونصلیٹ نے لکھا، پیرس اولمپک میں پاکستان نے تاریخی فتح حاصل کی۔ ارشد ندیم بین الاقوامی میڈیا پر چھا گئے۔ بی بی سی نے لکھا کہ پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے تاریخی فتح حاصل کی۔ الجزیرہ نے سرخی لگائی، ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت لیا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے لکھا، ارشد ندیم نے تاریخی جیولن تھرو کر کے گولڈ میڈل جیتا۔ انڈیا ٹوڈے نے بھی سرخیاں جمائیں۔ عرب میڈیا کی طرف سے ارشد ندیم کے جیولن تھرو کی کمنٹری بھی وائرل۔ بھارتی میڈیا بھی ارشد ندیم کی تعریف کرنے پر مجبور۔
सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक या फिर प्रिंट मीडिया, सभी अरशद नदीम की जीत के गुण गाने लगे। सोशल मीडिया पर जहां अरशद नदीम को सराहा जा रहा है तो वहीं दिलचस्प तंज भी नजर आ रहा है। एक्स पर एक सारिफ ने वजीर खजाना की तस्वीर लगाई और लिखा, अरशद नदीम को सिर्फ पायलर ही इनाम दे सकता है। साथ ही कहा, इनामात पर सेल्स, एंटरटेनमेंट, विद होल्डिंग और इनकम टैक्स अदायगी के बाद अरशद की तरफ 5,000 निकलते हैं। एक सारिफ ने लिखा, लंबी फेंकने में अरशद नदीम आज भी दूसरे नंबर पर है। एक और सारिफ ने अदाकारा मीरा की पुरानी वीडियो शेयर की। मीरा कहती हैं, अरशद नदीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। एक सारिफ का कहना था, हीरे और हीरो गांव के कच्चे मकानों से ही निकलते हैं। एक सारिफ ने लिखा, अरशद नदीम नाम ही काफी है। गोल्ड मेडल में लोहे का टुकड़ा। पेरिस ओलंपिक्स में दिए जाने वाले तमखों में एक खास बात तमखों के दरमियान लगा लोहे का मुसद्दस टुकड़ा है। तकरीबन 18 ग्राम वजनी लोहे का ये टुकड़ा सोने, चांदी और कांसी के तमखों पर मौजूद है। पेरिस ओलंपिक्स में फातेह खिलाड़ियों को दिए जाने वाले सोने के तमखे की मालियत $950 के लगभग है, जो इन मुकाबलों के महंगे तरीन सोने के तमखे हैं। सोने के ये तमखे मुकम्मल तौर पर सोने से तैयार किए जाते तो इनकी मालियत कमोबेश $41,000 हो जाती। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशंस गेम्स की बैनुल-अक़वामी गवर्निंग बॉडी ने अप्रैल में गैर मुतवक्के तौर पर ऐलान किया कि वो 2024 पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वालों को $50,000 इनाम देगी। किसी स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए अपनी नौयत का पहला इनाम है। सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की मस्जिद नबवी के इमाम से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म और इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर का मुलाकात में नेक तमन्नाओं का इज़हार। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर अहम नून लीगी रहनुमा भी मुलाकात में मौजूद थे। खैबर की वादी तीराह के 3 मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक मुकाबले में 4 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में हवलदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान शामिल। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा को खिराज अक़ीदत। सदर का कहना था, पाक फौज और कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक फौज के अफसरान और जवान फितना खारिज के दहशतगर्दों से वतन की मिट्टी को पाक करके रहेंगे। वज़ीर आज़म की शहदा की बुलंदी दर्जात और उनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार, हल्की बूंदाबांदी से गर्मी की छुट्टी। कराची में बरखा रुत, सदर, MA जनाह रोड, नुमाइश, तारिक रोड पर बूंदाबांदी। गुलशन इकबाल स्टेडियम रोड और बलोच कॉलोनी में हल्की बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सैदपुर में 65, गोलड़ा 52, शमसाबाद 13 और कचहरी के इलाके में 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कटारिया के मकाम पर नाला लई में पानी की सतह 8 फीट और गवाल मंडी के मकाम पर 9.5 फीट तक बुलंद हो गई। कश्मीर और मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें, डैमों में पानी की आमद भी बढ़ गई। हुकूमत और जमाते इस्लामी में तय पाने वाले मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। मुआहदे के मुताबिक IPPs से मुआहदों पर मुकम्मल नजरसानी की जाएगी। IPPs के मामले पर टास्क फोर्स कायम होगी जो 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। अगस्त के बिजली के बिलों की अदायगी को 15 दिन के लिए मौखिर किया जाएगा। कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगी बिजली फी यूनिट की कमी से मुंसलिक होगी। रेवेन्यू बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा। ताजरों और एक्सपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाई जाएगी। हुकूमत से मुआहदे के बाद जमाते इस्लामी ने धरना मौखिर करने का ऐलान किया था। मुल्क भर में एक बार फिर इंटरनेट सर्विस मुतासिर, PTA खामोश। जुड़वा शहरों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर। 2 दिन से डाउनलोडिंग की शिकायत मौसूल। मोबाइल सार्फिन को 3G और 4G सर्विस भी सूदमंद साबित नहीं हो रही। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के अफसरान खामोश तमाशाई। PTA ने सर्विस में खराबी से मुतालिक ताहाल अलामिया जारी नहीं किया। मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा कंपनियां पाकिस्तान आई हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं 300 से ज्यादा पाकिस्तानी कंपनियां एक्सपो में शरीक हैं। चीन से 150 लोगों का वफ्द भी एक्सपो में शरीक है। दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं।
हुकूमत सरमाकारों को साजगार माहौल फ्राहम कर रही है। लोग ताने देते हैं कि मौजूदा हुकूमत में हालात बेहतर नहीं हो रहे। पाकिस्तान में ज़राअत का शोबा तरक्की कर रहा है। अमरीकी डॉलर और रुपए की जंग। रवां हफ्ते अमरीकी करेंसी की कीमत में सिर्फ 5 पैसे इजाफा हो सका। रुपए की डॉलर के सामने सख्त मज़ाहमत। ज़र मुबादला की कमी के बावजूद पाकिस्तानी करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर दबाव का शिकार रहा। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग 278 रुपए 50 पैसे रही। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 55 पैसे पर बंद हुआ। दुनिया भर की करेंसी मार्केट्स इस हफ्ते नुमाया उतार चढ़ाव का शिकार रही। अमरीकी मईशत में कसाद बाजारी के खतरे ने स्टॉक मार्केट्स को रेड जोन में धकेल दिया। अमरीकी डॉलर भी दबाव में रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कंपनियों के तारीख के बुलंद तरीन मालियाती नताइज ने कारोबार का रुख बदल दिया। 100 इंडेक्स में 343 पॉइंट्स इजाफे के बाद सरमायाकारों ने 118 अरब रुपए मुनाफा कमाया। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 800 रुपए सस्ता हुआ। ईरानी पासदाराने इनकलाब की जानिब से रडार पर जाहिर न होने वाले नए क्रूज मिसाइलों का दावा। कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामा का कहना है कि जिंदा रहने के लिए या तो ताकतवर बनना होगा या फिर आप हथियार डाल दें। ईरानी बहरी बेड़े में शामिल नए क्रूज मिसाइल बड़े पैमाने पर नुकसान और अपने अहदाफ को तबाह कर सकते हैं। ईरान के पास मशरिक़ वुस्ता के सबसे बड़े मिसाइल प्रोग्राम्स में से एक है जो किसी भी जंग में अहम हथियार साबित हो सकते हैं। वतन अजीज का 76वां जश्न आज़ादी। गलियां, मोहल्ले और बाजार सब झंडियों से सज गए। जगह जगह कौमी परचम के बैजेस और टोपियों की फरोख्त जारी। शहरी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियों में मसरूफ। शहरी कहते हैं इस बार पहले से भी ज्यादा पुरजोश तरीके से आज़ादी की खुशियां मनाएंगे। शिगर में मारूफ नौजवान कोहपेमा जवाहर अली ने 7027 मीटर बुलंद चोटी स्पेंटिक सर कर ली। जवाहर अली और उनके साथी कोहपेमाओं ने आज चोटी सर करके पाकिस्तान का सबसे लाली परचम लहरा दिया। रवां साल स्पेंटिक सर करने वाले ये पहले कोहपेमा हैं। जवाहर अली ने स्पेंटिक को इससे कबल 2 मरतबा सर किया है।